Hello students, today we will take our Hornbill's poem The Voice of the Rain and written by Walt Whitman. आज हम हॉर्नबिल की poem The Voice of the Rain पढ़ेंगे और इसके poet कौन हैं? Walt Whitman हैं. First of all, I'll tell you the summary of this poem. This poem is a dialogue, a conversation between the poet and the rain itself. तो क्या है? The voice of the rain is a dialogue between the poet and the rain itself. ये क्या है? poet और rain के बीच में क्या है? एक dialogue है, एक conversation है. The rain in its personified form describes what it is. रेन को क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एक ह्यूमन बीइंग बताया गया है और वो अपनी ह्यूमन बीइंग फॉर्म में ही बताती है कि वह क्या है, वह कौन है एंड व्हाट इट डज, और वो क्या करती है. तो इन दिस पोएम द पोएट आस्क्स द रेन हु वाज शी. इस पोएम में पोएट रेन से पूछता है हु वाज शी, कि वह कौन है. हु इज शी, हु वाज शी, वह कौन है. And the rain answers the questions of the poet. और rain poet के questions का आंसर देती है and the poet translates it. और poet उस question के आंसर को क्या करता है? आपके सामने translate करता है. So being personified, the rain replies the questions of the poet. Being personified यानी personification यानी human being के रूप में. When the poet asks the rain, जब पोएट रेन से पूछता है कि who she was, वह कौन है, तो then the rain replies, I am the poem of the earth. मैं अर्थ की पोएम हूँ. I rise out of the land and bottomless sea like something which cannot be touched. वो क्या कहते हैं कि I rise out of the land, मैं लैंड से और bottomless sea से उत्पन्न होती हूँ और like something which cannot be touched, ऐसे जिसको भी टच नहीं किया जा सकता. I rise upward to the sky where I change my form. मैं upward to the sky, ऊपर स्काई में चली जाती हूँ and where I change my form, और वहां जाकर मैं अपनी फॉर्म को, अपनी रूप को चेंज कर लेती हूँ. Then I fall down on the surface of the earth to wash or bath the dross, atoms, dust, etc. और फिर मैं वापस नीचे आती हूँ. When I reach to the sky, जब मैं स्काई में पहुंचती हूँ, I change my form, मैं अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हूँ. कैसे चेंज कर लेती है? Sometimes it changes into big drops, sometimes it changes into tails, and sometimes it changes into shower. तो कभी कभी वह शावर के रूप में, कभी कभी बड़ी बड़ी बारिश, मोटी बारिश की बूंदों के रूप में, और कभी कभी हैवी रेन के रूप में, और कभी हेल स्टोन्स के रूप में वो पृथ्वी पर आती है. तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है. एंड देन the rain fall down to on the surface of the earth. The rain falls down on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस पर गिरती है. to wash or bath the dross, atoms and dust. वो वॉश करने के लिए, बाथ करने देने के लिए, नहलाने के लिए एटम्स वगैरह को, ड्रॉस सूखे स्थानों को और डस्ट लेयर को, इन सबको जीवित करने के लिए, सजीव करने के लिए फिर वापस पृथ्वी पर आती है. I also fall on things which without me cannot assume life. और मैं उन चीजों पर भी गिरती हूँ जिनको कि जो कि मेरे बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते. Day and night I give life to my own origin and make it pure and beautified. Day and night, दिन रात मैं अपने origin यानी उत्पत्ति स्थल पर जो भी चीजें हैं, एटम्स, डस्ट लेयर, शेड्स, इनको जीवन देती हूँ और उनको सुंदर बनाती हूँ. और here rain is compared to a song. यहाँ पर रेन की कंपेयर किससे की गई है? एक सॉन्ग से की गई है. एंड रेन itself answering, a song is issuing from its birthplace after fulfilling and wandering as voice here and there acquire love when it returns. तो क्या कहा गया है? कैसे रेन की कंपेयर सॉन्ग से की गई है? Just as a song takes birth from the heart of the poet. जैसे कि एक सॉन्ग पोएट के हृदय से उत्पन्न होता है. and it walks here and there, वो यहाँ और वहाँ घूमता है. and after giving love, और लोगों के बीच में प्रेम को फैलाकर it returns, वो वापस लौट जाता है. it returns into the heart of poet again, वो वापस अपने पोएट के हृदय में चला जाता है. whether it is cared or uncared,
चाहे किसी ने उसकी परवाह की है और चाहे उसकी परवाह नहीं की है। So in the same way, rain returns with love after giving life to anything. क्या है कि रेन भी आफ्टर गिविंग लाइफ टू एनीथिंग, किसी भी चीज को जीवन देने के पश्चात रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन अगेन, वापस अपने ओरिजिन स्थल पर, उत्पत्ति स्थल पर चली जाती है। वेयर डज शी गो, कहाँ पर रेन जाती है? इन द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी पर ही चली जाती है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है वापस वहीं पर जाकर के मिल जाती है। सो दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द पोएट आस्क्ड फ्रॉम द रेन हु शी वाज एंड रेन गिव्स answer in personified form. So we will explain the poem now. And who art thou, said I to the soft falling shower? Who art thou, said I? I refers here to the poet. I को यहाँ पर I किसके लिए आया है? Poet के लिए आया है। said I. I यानी poet ने रेन से पूछा who art thou? Who are you? तुम कौन हो? किससे पूछा? said asked to the soft falling shower. soft falling shower, धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा की बौछारों से पूछा who art thou? तुम कौन हो? Which stands to tell gave me an answer as here translated. Here poet says that I found rain's answer very strange. जब रेन ने मुझे आंसर दिया तो मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा, और जो रेन ने मुझे आंसर दिया as here translated, मैं उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। I am the poem of the earth, said the voice of the rain. That the voice of the rain answering here in its personified form. rain यहाँ पर अपने personified form में आंसर देती है, और वो क्या कहती है? I am the poem of the earth. It is the answer of rain. वो कहती है कि I am the poem of the earth. मैं अर्थ की poem हूँ। Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. वो क्या कहती है कि मैं असीमित लैंड और bottomless sea से उत्पन्न होती हूँ, upward to heaven, और फिर ऊपर आकाश तक जाती हूँ। Whence regularly form, और जहाँ पर मैं regularly form अपनी फॉर्म चेंज करती हूँ, all together change and yet the same, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ। रहती तो वो बारिश ही है ना, रेन नहीं है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। कैसे कि कभी कभी बारिश की बूंदों के रूप में आती है, कभी हैवी रेन के रूप में आती है, कभी हेल स्टॉर्म्स के रूप में आती है। I descend to let the dot atomize the layer of the globe. वो क्या कहती है कि I give life to the dot atomize the layers of the globe. मैं ग्लोब के इन सभी डॉट्स सूखे स्थानों पर, एटम्स पर, 10 लेयर्स, इन सबको मैं जीवन देती हूँ। And all that in them without me were seeds only latent are born. और उन सभी सीड्स को, उन सभी बीजों को जो विदाउट मी विल लीव ओनली सीड्स, केवल बीज ही रह जाएंगे, अनबोर्न रह जाएंगे, वो प्लांट के रूप में कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, तो उन सबको भी मैं जीवन देती हूँ। एंड forever by day and night I give that life to my own origin. और इस प्रकार दिन और रात में लोगों को जीवन देकर, इन सब चीजों को लाइफ देकर मैं वापस अपने ओरिजिन स्थल पर, अपने उत्पत्ति स्थल पर चली जाती हूँ। एंड आफ्टर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और मैं इन सब जो चीजों को प्योर करती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। ओ सॉन्ग इज सिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट बॉन्डिंग, जिस प्रकार से कि सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस फ्रॉम विच इज सॉन्ग बर्थ प्लेस फॉर हर्ट, कि जैसे सॉन्ग पोएट के हार्ट से उत्पन्न होता है। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट बॉन्डिंग, और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के पश्चात, लोगों के बीच में जाने के पश्चात वो वापस अपने उत्पत्ति स्थल पर चला जाता है। वेदर इट इज हर्ट और अनहर्ट, चार लोगों ने उसको सुना है, नहीं सुना है, वेदर इट इज केयर्ड और अनकेयर्ड, चाहे उसकी केयर की गई है या नहीं की गई है, वो वापस विद लव रिटर्न, प्रेम के साथ पोएट के हृदय में ही लौट जाता है। रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड और अनरैक्ड, केयर्ड और अनकेयर्ड, हर्ट और अनहर्ट। तो बेटा क्या है कि जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश से बहुत ज्यादा हेजिटेशन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं बारिश से, अपनी विंडोज भी बंद कर देंगे और दरवाजे भी बंद कर देंगे। बारिश की एक बूंद से भी उनको क्या होता है, इरिटेशन होती है, परेशान हो जाते हैं। और बहुत से लोग क्या होते हैं, रेन को एंजॉय करते हैं, बारिश में जाके खड़े होते हैं, अच्छा लगता है, शावर में जाके खड़े होते हैं, और बहुत से उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब बारिश होती है कभी, तो कहते हैं कि कोई रेन होती है वो इस सीजन में इन लोगों के, किसानों के लिए अच्छी होती है और इस सीजन में नहीं होती। तो जब उनके लिए अच्छी होगी तो उन्होंने उसकी केयर की, और जिस फसल के लिए अच्छी नहीं होगी, और अगर उस फसल में, उस क्रॉप में रेन आ जाए, उस सीजन में रेन आ जाए, तो वो उनको क्या होगी, उनके लिए हार्मफुल होगी, तो वो उसकी केयर नहीं करेंगे।
ऐसे ही कुछ लोगों को रेन बहुत अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। तो इन द सेम वे आपका सॉन्ग्स है, सॉन्ग क्या है कि कुछ लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सॉन्ग तो सबके बीच में गाया जाता है ना बेटा। जैसे आप अपनी असेंबली को ही ले लीजिए, आप लोग सब असेंबली में बैठते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों में से कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप अपने सॉन्ग को केयरफुली, जो भी सॉन्ग वहाँ पर सुनाया जा रहा है उसको केयरफुली आप सुनते, तो कुछ उस सॉन्ग को सुनते हैं और कुछ उसको नहीं सुनते। आप लोगों में से भी है, जब असेंबली में बैठते हैं, जब आपको सॉन्ग सुनाया जाता है तो समटाइम्स यू हियर इट और यू सिंग इट, कभी तो तुम इसे गाते हो और कभी उसको सुनते हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो शांत बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही वेदर इट इज केयर और अनकेयर, इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिन, इट मीन्स in the heart of the poem. In the same way the rain comes, gives life to anything, to the dust layers, to the dots, to the atoms, and to the seeds, and returns to its origin in the bottomless sea. Okay, beta, this is the explanation of this your poem, and now we will discuss some questions. Who are the two persons involved in this conversation? इस पोयम में जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें कौन से दो पर्सन इन्वॉल्व हैं? तो टू पर्सन आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, दे आर द पोएट एंड द रेन, पोएट एंड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेंस टू टेल? क्या है स्टेंस टू टेल? क्या स्टेंस है बताना? इट इज स्टेंस टू टेल दैट द रेन is giving an answer. So rain given an answer is stands to tell. The rain is reply. It is stands to tell. What does the rain call itself? Rain अपने आप को क्या कहकर पुकार रही है? The rain calls itself the poem of the earth. Next question, whom does the word I refer to? यहाँ पर I किसके लिए आया है? I refer to the poet. Why the answer was strange? आंसर क्यों स्ट्रेंज है? द आंसर वॉज स्ट्रेंज एट इट इज अनयूजुअल फॉर द रेन टू रिप्लाई। आंसर स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि रेन के लिए आंसर देना अनयूजुअल है, असाधारण बात है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेंज। व्हाट डज द वर्ड इम्पॉसिबल मीन्स? इम्पॉसिबल मीन्स का मीनिंग क्या है? अनटचेबल, अनसीन। कीप इट इन योर माइंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पॉसिबल? अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द रेन फॉर्म? रेन कहाँ पर अपना रूप चेंज करती है? द रेन इज फॉर्म्ड इन द स्काई। नेक्स्ट, व्हाई डज द रेन फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ? रेन अर्थ पर क्यों आती है? द रेन फॉल्स टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ एवरीवन। रेन अर्थ पर क्यों आती है? हर किसी की क्वेंच में प्यास को बुझाने के लिए आती है। विदाउट रेन देयर इज नो लाइट ऑन अर्थ। बिना रेन के अर्थ पर कोई लाइट ही नहीं होगी। व्हाट हैपन्स टू द सीड्स विदाउट रेन? सीड्स का क्या होगा विदाउट रेन, बिना रेन के? द सीड्स विल रिमेन अनबोर्न विदाउट द रेन। विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन अनबोर्न, अजन्मे ही वो रह जाएंगे। दे विल नॉट चेंज इनटू द प्लांट। नेक्स्ट, इन सेकंड स्टैंजा, हु डज I refer to? In the first stanza I refer to the poet, and the next stanza I refer to the rain. What is the impact of the rain on the earth? The rain purifies and beautifies the earth. Next beta, cared or uncared, which write the words which signifies cared or uncared. Care और uncared यहाँ पर वर्ड किसको सिग्निफाइज किया गया है? रैक और अनरैक। बेटा ध्यान रखना है, केयर्ड और अनकेयर्ड, रैक और अनरैक का मीनिंग है, और हेयर्ड और अनहर्ड भी आ सकता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू? विच लाइन्स इंडिकेट दिस? Two voices have I already told you that these voices are one of the poet and the other is of the rain. What does the phrase stands to tell means? Stands to tell means किसको क्या बताना चाह रहा है? तो stands to tell means that the poet is so amazed by the answer of the rain that he cannot tell it. We can only feel what it says. वो क्या कह रहा है कि हम इसको फील कर सकते हैं, इसको बताया नहीं जा सकता कि रेन क्या दे रही है। So what does the phrase stands to tell means? Stands to tell means that the poet is so amazed by the answer of the rain that he cannot tell it. We can only feel what it says. There is a parallel drawn between rain and the music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two.
The words I give back life to my own origin and the beauty with love returns indicate this, and there is a similarity between music and the rain. Both returns to the place of their origin. दोनों इनमें क्या सिमिलरिटी है कि दोनों ही लोगों के बीच में जाती हैं, केयर्ड और अनकेयर रहती हैं, और आफ्टर फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करने के पश्चात दे रिटर्न बैक टू देयर ऑरिजिन, वो वापस अपने ओरिजिन स्थल पर चली जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस. आप साइंस पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप इसको उससे कंपेयर कर लेंगे. नेक्स्ट, व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट? बिकॉज क्यों लास्ट की 2 लाइन्स ब्रैकेट्स में रखी गई हैं? द पोएट कंपेयर्स द रेन विद म्यूजिक. फर्स्ट ही गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेन एंड देन ही गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक इन ब्रैकेट. क्या है कि पोएट ने यहाँ पर रेन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, और लास्ट 2 लाइन्स में वो ब्रैकेट में इसलिए रखी है कि क्योंकि यहाँ पर वो म्यूजिक के बारे में बता रहा है, रेन की कंपैरिजन म्यूजिक से कर रहा है. दैट्स व्हाई दीज 2 लाइन्स आर इन ब्रैकेट. द पोएम बिगिंस इन अ conversational turn. Who are the 2 participants in this conversation? बेटा ये मैं आपको I have already told you. How did the poet look at the rain? What did he ask it? What problem did the poet face in telling the rain's answer? The poet looked at the rain as the soft falling shower. Poet रेन को कैसे देख रहा है? soft falling shower के रूप में देख रहा है. And he asked who she was, और वो उससे क्या पूछ रहा है कि who she was. The rain answered, और रेन उसका क्या दे रही है? आंसर दे रही है. But the poet found it strange to tell what answer the rain gave. लेकिन पोएट को ये स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है ये बताना कि रेन क्या आंसर दे रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेन डू डे एंड नाइट टू द थिंग्स? डे और नाइट रेन क्या करती है? बेटा यू नो इट वेरी वेल कि आप इसे अच्छे से जानते हैं कि द रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ऑन ओरिजिन एंड कंटिन्यूस मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल. रेन क्या है? लोग वस्तुओं को अच्छी बनाती है, सुंदर बनाती है. एंड दिस एक्शन ऑफ द रेन इज ऑटोमेटिक एंड इट इज सोर्स ऑफ लाइफ टू ऑल थिंग्स विदाउट विच इट वुड रिमेन हिल्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइकिल ऑफ द सॉन्ग? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सॉन्ग का साइकिल क्या है और क्या यह रिप्रेजेंट होता है? द साइकिल ऑफ द सॉन्ग इज दैट इट इश्यूज फ्रॉम इट्स birthplace and fulfillment and moving, rest or unrest, return to its own origin. In other words, the song spreads love as the rain gives life. It represents music is life giving like the rain. Better now I am telling you the central idea of this poem, the voice of the rain. So in this poem, the rain calls itself the poem of the earth. It is everlasting and perpetual. It is something that cannot be touched. It originates from the land and the deep sea. Then it rises upward to the heaven, where it changes its form into a cloud, yet remains the same in quality. From the sky, it pours down on the earth to wash the dry, thin particles and dust layers on the earth. The rain helps the unborn seeds to sprout. These seeds lay hidden and unborn under the layer of the earth. Rain given back life to its origin, making it pure and beautiful. Why does rain say, I give back life to my origin? रेन क्यों कहती है ये बात कि एंड व्हाट आंसर डज रेन गिव टू द पोएट अबाउट इट्स ओरिजिन? तो रेन पोएट को क्या आंसर दे रही है अपने उत्पत्ति स्थल के बारे में? तो बेटा द रेन आंसर्ड द पोएट दैट इट वाज द पोएम ऑफ द अर्थ. इट रोज इटर्नली आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इनटू द स्काई. देयर इट इज फॉर्म gradually and changed its form, but it remains the same. रहती तो वो रेन ही है ना बेटा. चलिए, this is the explanation of your poem, and in our next class we will take the alien planet.